we take the multiple yes, we take the many readings in place of the few readings in the state estimation. In say there are two system states which we want to calculate, and for calculating the two, we don't only take the two reading, but we take say more than two readings. And those number, if the number of estimations number of states are say 2, and if you are taking the 4 readings, then 4 minus 2 is the degree of freedom, means this is the extra reading you are taking. And yesterday we have taken a linear network, simple DC linear network here. Then we have shown that this network can be represented in the form of a system that was in this form. This system was in this form. Z is equal to Hx. Z was equal to Hx. And we have to calculate x1 and x2. We have to find out what is the value of x1 and x2. For finding the x1 and x2 here, we require only 2 readings, but we have taken the 4 readings, Z1, Z2, Z3, Z4. So this additional degree of freedom helps in calculating the system states in the better estimation is done. So we have shown this to minimize this error, means this is the error function. To minimize this function with the intention that this error should be minimum, we find x, that is the x1 x2, with this formula. X is equal to G inverse H transpose WZ. Here the value of x1 x2 obtained is a good estimation. So before going to the next, or before moving to ahead, we please remember the following formula which we will describe when we will take the numerical question. We will need these formulas. So you remember, to on a paper, on a plain paper, before starting this, on a plain paper you write Z is equal to Hx. This Z is equal to this, you see Z1, Z2, Z3, Z is equal to Hx. Write this. देखिए बार बार ये आएगा आपके पास, तो एक कागज पर आप लिख कर रख लीजिए ये चीजें. जब मैं एक्सप्लेन करूंगा बार बार ऊपर मूव करने की बजाय ये आपके सामने होना चाहिए. Z is equal to Hx, ये फॉर्मूला हो गया, प्लस दिस x is equal to G इनवर्स H ट्रांसपोज WZ एंड G is equal to H ट्रांसपोज WH. ये आप एक कागज पर नोट करके रखिए, आपको बार बार जरूरत पड़ेगा. ओके, ठीक है. नाउ yesterday we have taken this numerical. Deepika, are you, this screen is visible to you? Yes, sir. So yesterday we have taken this numerical, that where H is this, or before that too, yes, for this network, this Z is equal to Hx, this, and this value, this H is given, Z1, Z2, Z3, 4, Z1, Z2, Z3, Z4 are given, and we have to find x1 and x2. So this is given in this numerical question. In this numerical question, this is given. Z is given, and this model H is given, and we have to find x1 and x2. For this, what we did in yesterday, in the class we described, find out x, this x is equal to this G is equal to H transpose. H is this, so we calculate H transpose here. This is H, so this is H transpose. W was also given, the W1, W2, W3, W4, this W given. So S4, this is the value of W2, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नो सर. ये तो फुल है भाई. Yes.
So I will try to make the loud sound. So is it clear now? Yes, sir. Now clear, sir. Hello? Yes. So this H is given, so H transpose W, this H transpose, this is W, H transpose W is this, H transpose W and H, if you multiply that, is the new value, G. And here you see G inverse is this. If you remember, here this H transpose WH, this is H transpose WZ. So we calculate H transpose W once. This is H transpose W, multiply it with H, you will get this. Multiply of this with Z, you will get here H transpose WZ. And G, you calculated, this is G inverse H transpose WH. Here, this is the value of X. So in this way, you have seen the x1, x2 are this. Means with the four measurements are done. These measurements were 9, Z1 was 9 ampere, Z2 was 3 ampere with the help of the meter. And this Z3, this was the voltage. This measured was 6.98. Voltage, next voltage, that is the Z4, is measured as a 4.4. With the help of these, you obtained, although we know there is some error in this, there is some error in the measurement, with this intention that we know that there are some error in this measurement, then what is the value, what is the perfect value of x1 and x2. So from here, we calculated the x1 and x2 is this. x1 is this, x2 is this. 15.86 and 7.75. Now, so up to now, yesterday we described up to this point. Now we will see whether the value obtained x1 and x2, that is the source voltages 15.86 and 7.76, whether they are correct value or not, whether we have estimated the correct value or not. So for this, again, now we will check, we will verify this observation is good or not. So now, as I told just now, you remember the formula Z is equal to Hx and X is equal to G inverse H transpose Wz. So this formula, these two formulas should be in front of you. So now we will verify this Z is equal to Hx. You know, I told you this Z is equal to Hx. So now calculate Z. Z means what is Z? Z is the H is this value, x1 x2 is the calculated value जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, इसको वेरीफाई करना, इसी को देखना है कि ये सही है कि नहीं है, जो हमारा निकल के आया है रिजल्ट, आंसर आया है, ये सही है या नहीं है. तो hx is equal to z. तो दिस इज द z इज द, इसके अकॉर्डिंगली आ रहा है z की वैल्यू ये, बट आपने मेजर्ड क्या किया था, आपने इनपुट लिया क्या था, z की वैल्यू गिवन ये था, आपने मीटर से जो मेजर किया था, z was this. You can see here z was this and the formula was z is equal to hx. तो जो x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो z आ रहा है और ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ z है, तो इनका डिफरेंस क्या है देखिए. So ये तो if we assume this x1 x2 are correct, then z should be this, but z is not this. Z measured value of z is this. So this is the error, means z minus this z means measured value of z and calculated value of z. This is the error. Okay. So this is the error. Now we will see whether this error is acceptable or not. Whether this error is acceptable or not, or there may be chances that out of the measured value, these Z1, Z2, Z3, Z4, there can be some of the instrument may give the bad data. It may happen that meter connected here may have some bad data, means it may be incorrect, or meter connected here may be incorrect, or meter connected here, that is the voltmeter, may be some incorrection in that, or meter here, that is the voltage at this point may be some faulty meter may be there.
So now we will see that is there any bad data out of these four or not. So for knowing that, we make certain tests, and these tests are number of measurements you have taken 4 in this numerical question, number of measurement you have taken 4, and number of system states were 2. So how much additional measurements are taken? N minus 2. This is called the degree of freedom. Nm minus ns. Nm is number of measurement, number of states. So these are the degree of freedom. So degree of freedom are 2. Now, what were our objective function? Objective function was that this error should be minimized. Error, square of the error multiplied by the weights. So square of the error multiplied by the weights. Now you know this is the error. This here, measured value minus calculated value, put it here in the objective function. This value comes out to be this. Now there is a test that we will describe. One more thing here. देखिए, the name of that test, whether there is a bad data or not, that name of that test is called the chi-square test. Now we will describe what is the chi-square test and how the chi-square table is obtained. That we will describe later on, but let us see what is that table. What is that table? Yes, are you able to see this table? Yes, sir. यस, ये देखो, हाँ, ये कैसा आया ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ये समझें ये है क्या. ये कह रहा है कि देखिए, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, मतलब आपने 2 की जगह 4 मेजरमेंट लिए हैं, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. अगर आपने 4 की जगह 6 मेजरमेंट लिए हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. इफ 4 की जगह 8 मेजरमेंट लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4. तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए, ये है, अगर आपका नंबर ऑफ, देखिए, you want that the probability of that is सर वॉइस क्लियर नहीं है सर. हेलो, यस सर. आवाज जस्ट ईयरफोन ला रहा हूं. हेलो, हेलो. यस सर. हाँ, अब कैसा आवाज? सर क्लियर है, ठीक है सर अब तो. हेलो, अब? यस सर, ठीक है सर. हेलो. यस सर, अच्छा. ठीक है सर. हाँ, so yes, please. So if you want that this error, the probability of error, if it is a less than 1%, that is this, then, and degree of freedom is 2.
you see degree of freedom 2, this value, objective function should be less than this. If the degree of freedom increases, you see, if degree of freedom is increases like this, then the value should be less than this. So this is the chi-square table, chi-square distribution. I will just describe with this also how it is obtained, but before that, just for the numerical purpose, you see here, if the degree of freedom is 2 and we want the chances of error should be less than 1%, then this value should be less than 9.21. Now you see here again reach there. Yes. This is a chi-square table. Here you see this objective function error square, it is 15.2. Okay. So for this value, for 2 degree of freedom, and we want probability of error should be less than 1%, then this value 9.21, it should be less than that. But it is here, the value is more than 15.1 means more than 9.21. इसका मतलब क्या हुआ? It is observed that there is some presence of bad data. इसका मतलब हुआ कि हमारा जो Z1, Z2, Z3, Z4 है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है. इसी की वजह से, इस मिस्टेक की वजह से आपका जो वैल्यू है ये W1 X1 X2 जो आया है, X1 X2 क्या आया है? 15.86 एंड 7.75 ये आया है, क्योंकि उनमें 4 मेजरमेंट में से एक मेजरमेंट कोई गलत था, उसमें कोई बैड इंफॉर्मेशन थी, उसकी वजह से ये हमारा X1 X2 आया. ना भी ऑप्टेन हमने किया कि इन 4 में से कोई भी एक मिस्टेक है, किसी एक में मिस्टेक है. तो व्हाट वी विल डू नाउ, देखिए इसमें जो ये 4 हैं, ये ना, ये एरर Z1 माइनस Z ये मेजर्ड वैल्यू था 4, ये कैलकुलेट होकर आ रहा है HX से. तो देखिए हियर सबट्रैक्ट दिस इज एरर. नाउ यू सी इफ यू कंपेयर दीज ऑल 1 2 3 4, देखिए ये 4.9, ये कितना है 4.9, एंड ये आपकी वैल्यू कम है. सो अगर इसमें कुछ बैड डाटा है, हमें ये पता लगा कुछ बैड डाटा है, तो चांसेस ऑफ बैड डाटा आर इन दिस, इसमें हो सकता है. देखिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, एरर इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें बैड डाटा होने के चांसेस ज्यादा है. तो हमने क्या किया, अब इसको रिमूव करेंगे, इसको कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, ये मानेंगे बैड डाटा था. तो डोंट यू X1 एंड X2 कंसिडरिंग दिस मेजरमेंट. अब हम क्या करेंगे, इस मेजरमेंट को छोड़ के, आफ्टर एक्सक्लूडिंग दिस मेजरमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ दीज मेजरमेंट 1 2 3 Z1 Z2 Z3, इन 3 मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए केवल हम X1 X2 निकालेंगे. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये इक्वेशन था, अभी हमारा सिस्टम स्टेट था, देखिए ये था ना, ये कैसा आया था, ये हमारा ये इक्वेशन से आया था. वन टू थ्री फोर 4 इक्वेशन से आया था. अब हमने देखा इसमें मिस्टेक है, देयर इज चांसेस ऑफ बैड डाटा इन दिस 4 मेजरमेंट. तो हम ये 4th इक्वेशन को ध्यान में ना रखते हुए केवल ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 इक्वेशंस, on the basis of on the basis of only these 3 equations we will obtain X1 and X2. पहले हमने 4 मेजरमेंट, क्योंकि मिनिमम तो 2 से ही निकल आएगा, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम विल नॉट बी देयर. बट अब 4 की जगह हमने 3 वैल्यू को on the basis of Z1 Z2 Z3 we will obtain X1 and X2. ओके, तो anyway I think just a minute. हाँ मितेश. यस सर. ठीक है. Yes. Is it clear whatever I am saying? यस सर. So now what we will do, अब वो एक इक्वेशन को हमने कंसीडर नहीं किया, तो हमारा H क्या हो जाएगा. अब नाउ H विल बी, जो ये H था, H गिवन वाज दिस H11 H21 H31 H41, इसमें एरर था, तो हमने अब इसको इग्नोर कर दिया,
एक इक्वेशन को इग्नोर कर दिया। नाउ एच इज ओनली दिस 3/2। पहले क्या था, ये 4/2 था, अभी 3/2 बच गया। इस मेजरमेंट को भी इग्नोर किया है, तो अब Z1 Z2 Z3 3 आ गया। अब इसको इस बाई कंसिडरिंग दिस वी विल ऑब्टेन देखिए हमने क्या किया, H केवल ये लिया 3 लिया, सो H ट्रांसपोज, और ये W का भी लास्ट बेइंग मैट्रिक्स का लास्ट हटा दिया, सो H इज 3/1 H ट्रांसपोज W, सो H ट्रांसपोज W इज दिस, H ट्रांसपोज W H इज दिस, H ट्रांसपोज W H ट्रांसपोज W ये है, इसमें H का मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा। तो एंड G इनवर्स H ट्रांसपोज W Z, G इनवर्स ही आ गया, और H ट्रांसपोज W ये ऑलरेडी था, सो नाउ G इनवर्स ही निकला है, H ट्रांसपोज W Z यहाँ निकाला हुआ है, दिस ये H ट्रांसपोज W है, तो G इनवर्स H ट्रांसपोज W है, ये वैल्यू आया। मींस अब x1 x2 क्या है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स 16 and 8 आया। पहले क्या आया था 15.575 और दिस वाज द 7.75 लाइक दिस। अब ये वैल्यू आया, इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स वोल्टेज 16 वोल्ट और 18 वोल्ट है। ओके, नाउ वी विल सी, अब फिर ये चेक करेंगे वेदर वट एवर दीज वैल्यूज। अब हमने एक जो वेट डाटा था उसको रिमूव करने के बाद देखा, आफ्टर कंसीडरिंग द ओनली 3 मेजरमेंट्स, x1 x2 का वैल्यू ही निकला है। नाउ वी विल सी वेदर दी इज देयर एनी वेट डाटा इन दिस आल्सो, इन 3 में भी से कोई ये रिजल्ट ओके है या नहीं है। अगेन वी विल अप्लाई द टू वेरीफाई द रिजल्ट, अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला z इक्वल टू hx। h ये अभी एज्यूम किया है, सिस्टम का h है, x ये निकल का आया अभी, h ट्रांसपोज w सॉरी hx z इक्वल टू h इंटू x, ये आया 9 and 3 और 9 3 and 7, और हमारी वैल्यूज क्या थी 9 3 and 6.98 मेजर किया था, 9.01 3.02 और 6.98, और कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब एरर ये हुआ, दिस इज द एरर। नाउ वी अप्लाई द ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन W1 E1 square, W2 E2 square, W3 E4 E3 square, this is 0, this we have neglected, this we have left, so this is 0.044। now we will see, अब देखिए हमारे मेजरमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी मेजरमेंट्स आर देयर, 3 सर। जगवीर बताइए कितने मेजरमेंट्स हैं इस केस में, कितने मेजरमेंट हैं, कितनी वैल्यू मेजर की हुई है हमने, 3 सर। कार्तिक 3, तो ये मेजरमेंट्स अब 3 है, हमारे पहले 4 थे, और सिस्टम स्टेट्स जो निकालनी है वो 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यहाँ 1 एज्यूम करिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, वी वांट दैट 1% प्रोबेबिलिटी 1% हो, तो इसकी वैल्यू आप उसी में काई स्क्वायर टेबल में जाके फिर देखेंगे, काई स्क्वायर टेबल में जाके देखेंगे वहीं पे 1% पे देखिए, इसमें देखिए टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, ये 1% चांस हो, 6.3 से वैल्यू कम होना चाहिए, 6.3 से वैल्यू कम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एरर जो हमें मिनिमाइज करना था। यस देखिए, सो दिस वैल्यू इज 0.044, या ना 0.044, दिस इज लेस देन 6.64 जो वहां से निकला है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कंफर्म दैट 3 मेजरमेंट्स आर गुड डाटा, इसमें कोई बैड डाटा नहीं है, वेयर एज द 4th मेजरमेंट वाज ए बैड डाटा, 4th बैड डाटा था वो हटा दिया, उसके अब 3 जो हमारे डाटा आए हैं Z1 Z2 Z3 दे आर ओके, दे आर गुड, और उसकी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारा x1 x2 निकला है वो भी
ठीक निकला, x1 x2 क्या 16.8, 16 और 8, तो इसका मतलब जो हमारा सोर्स वोल्टेज एक 16 वोल्ट है और 8 वोल्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? दिस क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? क्लियर सर। इस तरह, हाँ, इसी के बेसिस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है वो ओके है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि करंट एकदम से बढ़ी हुई आ गई और हमने सर्किट ब्रेकर ओपन कर दिया, तो उसका प्रॉपर डाटा को रिमूव करके डिसीजन लेने से पहले हम ये स्टेट एस्टिमेशन करते हैं। ओनली लोड फ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली लोड फ्लो से काम नहीं चलेगा, लोड फ्लो में कुछ मेजरमेंट एरर भी हो सकते हैं। सो इन दिस पावर सिस्टम स्टेट एस्टिमेशन वी रिमूव दैट एरर। ओके, नाउ अब देखिए व्हाट वी आर डूइंग। अभी तक हमने क्या किया था, सपोज दो मेजरमेंट, दो वैल्यू कैलकुलेट करना था तो 4 मेजरमेंट ले लिया था। नो, व्हाट वी विल डू, देखिए अब हर एक मीटर पे जैसे हमारे दो मेजरमेंट, दो सिस्टम स्टेट्स कैलकुलेट करना था और 4 मीटर लगाए थे। नाउ इट वी नीड मल्टीपल रीडिंग्स ऑन ईच मीटर। व्हाट वी विल डू नाउ, जो हमारा Z1 था वो कई एक बार मेजर करेंगे। Z1 को 100 बार मेजर किया, Z2 को 100 बार मेजर किया, Z3 को 100। बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, वी कैन टेक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटरिंग। जो हमारा मीटर लगे हुए हैं, जो हमारा सिग्नल जहां से लेना है उस सिग्नल को कंट्रोल रूम पे लाना है, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट वी ट्रांसफर द सिग्नल। तो हमने बार बार रीडिंग लेते हैं। सो सपोज करिए Z1 को हमने 100 बार मेजर किया, Z2 को 100 बार मेजर किया, Z3 को 100 बार मेजर किया। ओके, सो वी टेक द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ ईच मीटर। नाउ if we plot multiple readings of each meter, then it will come like this, which is called normal distribution curve। मतलब क्या हुआ कि हमारा सपोज Z1 की वैल्यू 9 एम्पियर था, 9। तो अगर हमने बार बार उस मीटर पे 100 बार मेजर किया तो मोस्टली ये आएगा आपका 9, कभी कभी 9.1 आ जाएगा, कभी 9 था 8.9 आया, कभी 8.7 आ गया। मोस्टली जो आएगा हमारा 9 के अराउंड आएगा। बहुत कम, रेयर ऐसा होगा कि हमारी वैल्यू 9 की जगह 8 वोल्ट आ जाए, बिकॉज ऑफ एनी एरर मे बी इन द इंस्ट्रूमेंट, एरर मे बी इन द ह्यूमन। सो देयर आर means this is the frequency, how many times the deviated value may come, how many times the actual value may come। मतलब 9 था तो मोस्टली फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 100। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट। सपोज 9 आया 20 बार, 9 आया सपोज 80 बार, तो ये 80 आ जाएगा। 8.8 आया 6 बार, तो यहाँ आ जाएगा। 8.5 आया 3 बार, तो ये आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कितने बार क्या रीडिंग आई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटरिंग, कितने बार वो वैल्यू आई है, इस बात की फ्रीक्वेंसी है। सो इट इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हियर यू सी दिस कर्व कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, y is equal to n sigma 2 pi e to power z minus z is the m is the medium mean of the value। so z minus m is the mean value। this मतलब क्या हुआ, सपोज कभी जितनी भी आपने 100 बार रीडिंग लिया उसका जो मीन था वो ये है m। तो z minus m is the this new value, capital Z we are saying। so if we plot the curve, then this curve will be like this। अब देखिए, अब जो ये कर्व आया, इस कर्व का मतलब हमने जो भी रीडिंग ली है, जो भी रीडिंग 100 रीडिंग ली थी, और वो रीडिंग हम ये माने कि सारी की ऑल रीडिंग हमारा जो करेक्ट वैल्यू है इनमें से कोई भी एक होगी, तो इसका मतलब पूरा एरिया, वी टेक द एरिया ऑफ दिस कर्व। हियर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन क्या होता है। सपोज करिए आपने जितनी भी 100 रीडिंग्स ली हैं एक मीटर से, और सो ऑल द रीडिंग्स, सम ऑफ ऑल द रीडिंग डिवाइड बाय 100 इज द मीन। और डेविएशन, ये क्या होता है, डेविएशन क्या है, मीन से कितना हटके है,
कोई भी वैल्यू, सपोज जेड, एक बार आपकी मीन वैल्यू आया है 9 और किसी पर्टिकुलर रीडिंग है 8, so 9 minus 8 is the deviation, y is equal to z minus m deviation, and this is, and standard deviation is the, and ये आपने स्टैटिस्टिक्स 10th में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? हेलो मितेश, पढ़ा आर यू हुआ है रिमेम्बरिंग सर। दिस? हाँ, Yes, ये sir. चीज आपने पढ़ा हो, व्हाट इज मीन, व्हाट इज डेविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन्स है, जैसे हमारा मीन है m, सो x माइनस m का स्क्वायर, उसका जब मीन लेते हैं तो वो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वही फॉर्मूला है, आप 10th की बुक उठाकर देखेंगे स्टेट की, तो ये फॉर्मूला मिलेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज ए मीन, एंड दिस इज z माइनस m। तो इसको अब ये इसी इक्वेशन में, अगर सपोज करिए इस इक्वेशन में हम कहते हैं कि आपका इसका एरिया ऑफ द कर्व, मतलब हम कहते हैं कोई भी रीडिंग, जो भी रीडिंग मीटर से आई है वो सबकी सब इसके अंदर हो, इसका पूरा, इफ वी टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको हमने इसी इक्वेशन में अगर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब जो भी रीडिंग आई है वो सब इसके अंदर होगी। और हम कह सकते हैं अगर सब इसके अंदर, सपोज वो, अब वो सही है कि नहीं है, ये वाली ये देखना है। तो अब अगर हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम नैरो ले लें, नैरो मीन्स माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा, माइनस 2 सिग्मा 2 प्लस 2 सिग्मा, माइनस 3 सिग्मा 2 प्लस 3 सिग्मा। तो देखिए माइनस 3 सिग्मा 2 प्लस 3 सिग्मा मतलब मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। इफ वी टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम हियर टू हियर, तो मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है, 99% एरिया कवर हो रहा है। अगर हमने ये यहाँ से माइनस 2 सिग्मा 2 प्लस 2 सिग्मा लेंगे तो 97% एरिया कवर हो रहा है। अगर हमने माइनस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा करेंगे तो 84% कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें रीडिंग, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 84% के अंदर कि हमारा ओके, 84% इज ओके, जो भी मीटर से वैल्यू आ रही है वो 84% तक अगर है देन इट इज ओके, तो हम इंटीग्रेशन माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा ले लेंगे। लेकिन अगर हमें करेक्टनेस 97% चाहिए तो माइनस 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा ले लेंगे, और ये माइनस 3 ये। तो इसके अकॉर्डिंगली मीन्स जितना करेक्ट चाहिए उतना हम इसको नैरो करते जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो हमारी काई स्क्वायर टेबल है वो इसी बेसिस पे बनाई गई है। ये जो टेबल है, दिस टेबल उसी ग्राफ से कि भाई ये रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना बढ़ता जाएगा, और ये 1% के लिए, ये 5% के लिए, ये 10% के लिए, अकॉर्डिंगली ये हमारी काई स्क्वायर टेबल बनाई गई है। तो वी कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस टेबल, इस टेबल के बेसिस पे हम वेब डाटा को रिमूव कर सकते हैं और एक्चुअल वैल्यू x1 x2 का कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ यू सी, देखिए अभी तक हमने क्या किया था, इन द प्रीवियस एग्जांपल हमने क्या किया था, एरर, ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था W1 E1 स्क्वायर W2 E2 स्क्वायर, दिस शुड बी मिनिमाइज एरर। लेकिन जब हम इसमें मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, व्हेन वी विल टेक द मल्टीपल रीडिंग ऑफ ईच मीटर, देखिए मल्टीपल रीडिंग ऑफ ईच मीटर, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इन प्लेस ऑफ W1 क्या किया, W1 E1 स्क्वायर W2 E2 स्क्वायर किया था ना, ये Z E क्या है, E1 है, E1 मीन्स एरर, Z मेजर्ड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, तो this is Z1 minus E1, this is error. So Z1 minus E1, it was the Z1 minus this calculated value, so this was the E1 और वहां क्या किया था, E1 स्क्वायर इंटू W1, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, E1 स्क्वायर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसको, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, वेयर
दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, दिस इज द फॉर्मूला जो हमने अभी आपको बता रहा था। देखिए एक सेकंड, ये बता रहा था आपको, व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ये कि सपोज आपने 100 मेजरमेंट किए हैं, 100 मेजरमेंट में से आपने ये मीन 1 2 3 4 5 6 ये आपने बार बार जो मेजरमेंट किए, 9 की वैल्यू कभी 9.1 8.9 9.2 8.8 इस तरह आया, उसमें से हर एक वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब उससे कितना मीन से कितना डेविएट हो रहा है और कितने बार फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब जितना भी है उसका सम करें, डिवाइडेड बाई कितनी रीडिंग ली है, कितने बार डेविएट गया, कितनी रीडिंग ली है, उसका अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। दिस इज द, ये सपोज करिए मीटर नंबर 1, ऐसे मीटर नंबर 2, मीटर नंबर 3, दिस इज नॉट आई, इट इज ए के मीन्स फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ऑफ द सेम मीटर। ith रीडिंग का kth रीडिंग, और k कैन बी 1 2 3, जितनी भी रीडिंग ली है उन सबको, सबका ये स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल निकलेगा। आपने फर्स्ट मीटर के लिए अगर आपने सपोज 100 रीडिंग ली तो 100 रीडिंग की वैल्यू, k की वैल्यू 1 से लेके 100 तक आप इसमें पुटअप करें तो ये फर्स्ट रीडिंग का, फर्स्ट मीटर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। तो अब फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकलेगा। तो हमारा जो वेइंग मैट्रिक्स था, नाउ इट विल बी 1 बाई W1, इस पहले क्या था W1 W2 W3 था ना, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, इस ये वैल्यू आ जाएगा 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2, 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का स्क्वायर। तो इन दिस वे, अगर पहले फर्स्ट टाइम क्या किया था हमने, जितने भी मीटर थे सबकी एक एक रीडिंग ली थी और दीज मीटर वाज मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ क्या कर दिया है, हर एक मीटर की मल्टीपल रीडिंग ले रहे हैं और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे वेइंग मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ओके, इन दिस वे वी ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। दिस इज द स्टेट एस्टिमेशन। सो डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस?